हेलो सब्सक्राइबर्स, वेलकम टू माय चैनल A1 लर्नर्स। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो टुडे वी विल कंटिन्यू द टॉपिक ऑफ क्लास 10 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। सो टुडे आई केम विद अ क्वेश्चन विद यू ऑल गाइस। हमारा क्वेश्चन क्या है, लेट्स रीड। फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ चार्जेस यू हैव टू फाइंड आउट विच चार्ज और चार्जेस इज और आर पॉसिबल। मीन्स कि आपको कुछ चार्जेस यहाँ हमने क्वेश्चन में ले रखे हैं, हमको इनमें से ये बताना है कि कौन सा चार्ज पॉसिबल है और कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम एक थोड़ा सा अपने पीछे बैकअप लेते हैं, थोड़ा सा हमारे अब तक जो पढ़ा है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ चार्ज। चार्ज इज डिनोटेड बाय Q and it is always equals to plus minus n E, where E is equals to 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. Okay students, और one more thing, अगर हमको कैसे पता चलेगा कि चार्ज पॉसिबल है या नहीं है? इफ चार्ज इज पॉसिबल देन n इज नॉट इक्वल टू फ्रैक्शन, n फ्रैक्शन के इक्वल नहीं होने वाला है। सो लेट्स टेक चार्जेस वन बाय वन। सो फर्स्ट चार्ज इज 3.2 into 10 raised to the power minus 20 coulombs divided by, ऑल वी नो, इसको हम थोड़ा सा इक्वेशन में लेके चलते हैं। इट्स इक्वल्स टू प्लस माइनस n, E की वैल्यू क्या है 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. Now we will transpose this E towards this side and what it will become 3.2 into 10 raised to the power minus 20 coulomb divided by 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. कोलम से कोलम कैंसिल हो जाएगा, 1.6 2 ज़ा 3.2 होता है, और अगर हम इस minus 19 को ऊपर की तरफ ट्रांसपोज करेंगे so it will become 2 into 10 raised to the power minus 20 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर प्लस 19। नीचे से पावर ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी? अगर नेगेटिव थी तो पॉजिटिव, पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव। सो इन दोनों का अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो व्हाट वी विल गेट 2 into 10 रेज़ टू द पावर माइनस 1। अब ये चार्ज कैसा है, पावर कैसी है 10 की? नेगेटिव। मैथमेटिक्स में जाइए थोड़ा सा, नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा, नेगेटिव पावर नीचे आएगी, 2/10 एंड इट विल बिकम 1/5। नाउ here nx comes to 1/5, that is fraction. So this charge is not possible. So it is not possible. Now let's move towards the second charge, that is 6.4 into 10 raised to the power minus 18 coulomb. हम डायरेक्ट E को नीचे लिखने वाले हैं, that is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. Now what will we do? 6.16, 1.6 multiplied by 4 equals to 6.4 and 4 into 10 raised to the power minus 18, column से column cancel, into 10 raised to the power 19 plus 19, and if we subtract all these powers then we will get 4 into 10 raised to the power 1, that is 40. 40 equals to n. Now here n is not in the form of fraction, it is a whole number, so this charge is possible. Now let's take the third charge. What is the third charge, students? Third charge is 0.8 into 10 raised to the power minus 16 coulomb divided by 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. Now this will 1 and 2, 1/2. 0.8 multiplied by 2 gives 1.6 and this will becomes 10 raised to the power minus 16, कोलम से कोलम कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power plus 19 upon 2. अगर हम इन पावर्स का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो व्हाट वी विल गेट 10 raised to the power 3 by 2 and this will gives 1000 by 2 and this will ultimately become 500. So n is came out to be as a whole number, so this charge is also possible. Now let's move or take up the fourth charge, that is 12.8 into 10 raised to the power minus 19 coulomb divided by 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. Now coulomb से coulomb cancel, minus 10 raised to the power minus 19 से 10 raised to the power minus 19 cancel, and now 1.68 is 1.6 into 8 gives you 12.8. So आंसर में क्या आया हमारे पास 8. 8 equals to n, which is not a fraction, so this charge is also possible. So we came out to know
that if n is not equals to fraction, then the charge is possible. And these are some examples which we discussed today, and these are very, very helpful for you when you are performing any competitive exams, not your school exam. Maybe in school exams they either come or not, but in competitive exams they are surely asked, and that will be very helpful for you guys. Now let's take one more property of charge, that is invariance of charge. That is invariance of charge. This means charge is independent of speed. अब इस लाइन को समझने के लिए हम जाएंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे, न्यूटन की थ्योरी. E equals to delta mc square. E is the energy, delta is the change, m is the mass and c is the slight of a speed. This means that अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड की लाइट के मुकाबले कुछ ज्यादा या उसके जितनी चलने लगती है तो उसका मास किसमें चेंज होने लगता है? एनर्जी में. सो स्टूडेंट्स, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर चार्ज भी लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में चलने लगा तो उसका मास शायद एनर्जी में बदल जाए, बट उसका चार्ज कहीं नहीं जाने वाला, चार्ज वहीं का वहीं बना रहेगा. हम जो है ये डेल्टा ई को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज m इक्वल्स टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन v स्क्वायर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट्स, इधर जो ये c स्क्वायर मैंने लिखा है ये क्या है? स्पीड ऑफ ए लाइट. मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो स्पीड ऑफ अ लाइट के कंपैरिजन, मीन्स किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को हमने स्पीड ऑफ अ लाइट से डिवाइड किया, उसके बाद उसको 1 में से माइनस किया, फिर उसका रूट निकाला, फिर उसको हमने m नॉट दैट इज द मास एट रेस्ट उससे मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास चेंज इन मास निकल करके आने वाला है. और आप खुद सोचिए कि हम हमारी जो ये v होती है, हमारी जो नॉर्मल स्पीड है, वो लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में इतनी कम है, अगर हमने उसको उसकी स्पीड से डिवाइड कर दिया, उसको 1 में से माइनस कर दिया और उसका स्क्वायर रूट निकाला, तो भैया कितना कुछ हो जाएगा. तो इसलिए हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर को मानते नहीं. हम कहते हैं कुछ होता ही नहीं है, डिनोमिनेटर बिल्कुल 0 वैल्यू है उसकी, 1 वैल्यू बिल्कुल हार्डली 1. ठीक है, तो हम इसलिए इस m को और इस वाले m को इक्वल ले लेते हैं और कहते हैं कि कोई चेंज नहीं हुआ. पर हाँ, अगर ऑब्जेक्ट इस स्पीड के साथ चलेगा तो चेंज होगा. पर इफ यू टॉक अबाउट द चार्ज चेंज नहीं होगा. एटम का मास चेंज हो जाए, घंटा कुछ भी चेंज हो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, बस क्या होने वाला है कि उस ऑब्जेक्ट का चार्ज वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है कि उस ऑब्जेक्ट का चार्ज चेंज नहीं होने वाला है. चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड. So that's all for today's lecture.